Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है वंस अगेन एट स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पर आज मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो अकाउंटेंसी का चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, उसका आने वाला क्वेश्चन मैं जितने सिंपल में हो सके आपको समझा सकूं। सो हमेशा की तरह याद दिला देता हूं कि पहले पूरे लेक्चर को देख लीजिए। क्वेश्चन पेज नंबर आपको टाइटल में नज़र आएगा, समझ लीजिए सॉल्यूशन और उसके एक्सप्लेनेशन को, मेरे तरीके को, और उसके बाद में अपने आप से खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, सिंपल इंस्ट्रक्शंस थे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हमारे पिछले काफ़ी लेक्चर्स से हमने काफ़ी कैरेक्टर्स से मुलाकात की है, ये सारे कैरेक्टर्स ने हमारी हेल्प की है, और आजकल जो प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं और जिसका सल्यूशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर ड्रॉवर ड्रॉई के अलावा अनेकों ड्रॉईज आते हैं एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स का ये प्रॉब्लम होता है। सो इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस चैनल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो आपको क्वेश्चन के तरीके का अंदाज डेफिनेटली रहेगा। ओके, अभी के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे ऊपर कुछ चीज़ें, बिल्कुल कुछ नहीं, काफ़ी चीज़ें दी गई है। सो कहता क्या है, जर्नलाइज, ये पूरा चैप्टर जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड है। लेजर कभी कभार उन्होंने पूछा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। अभिषेक कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो ड्रॉवर भी हो सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन में ड्रॉई भी हो सकता है। तो अभी के लिए तो अभिषेक है। पॉइंट नंबर 1, तो मैं बी, सी एंड डी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट अपने आप में एक अलग कहानी है। अगर मैं थोड़े ना अच्छे भाषा में इस क्वेश्चन का वर्णन करने की कोशिश करूँ, तो जब मैं पॉइंट नंबर बी पढ़ूँ, व्हेन आई रीड पॉइंट नंबर बी, इट इज़ completely independent from C and D, and similarly point C and point D. So right now I am not worried about point number B, C and D. Point number A क्या कहता है? Whenever you read that point, जब भी आप कोई भी point पढ़ो, आप हिंट ढूंढने की कोशिश करो। What hint? कि अभिषेक मतलब ये जो क्वेश्चन है कौन है, ड्रॉवर है कि ड्रॉई? Let's read. कुछ इस तरह कहा गया है। Okay. So सिद्धांत कौन है वो तो मुझे नहीं पता। इन्फॉर्म्स अभिषेक मैं हूँ, दैट विनीड्स एक्सेप्टेंस, मल्टीपल कैरेक्टर्स, ऐसा नहीं है कि ये नया है, यू हैव डन दिस मेनी टाइम्स।
सिद्धांत मुझे बोलता है, क्योंकि मैं अभिषेक हूँ, कि तुझे याद है विनीत ने एक बिल एक्सेप्ट किया था, तो विनीत ड्रॉई बन गया, तो मैं ड्रॉवर, क्योंकि वही पॉसिबिलिटी है। एंडोस्ड टू सिद्धांत, इट इज़ ऑब्वियसली अ लॉट बेटर जब यही चीज़ मैं एक डायग्राम में आपको बता देता हूँ, जो मैं करूँगा, ओके, 1 मिनट में। हैज़ बीन डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड मतलब रिन्यूअल, रिन्यूअल मतलब 4 स्टेप्स, बट उसके लिए आपको इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट पता होना चाहिए। यहाँ पे अब तक मेरे को नहीं पता कि वो रिन्यूअल होगा कि नहीं। आगे कहा नोटिंग चार्जेस, वो अनफॉर्चुनेटली नथिंग चार्जेस कहा गया है, बट वो एक छोटा सा एरर है। नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 430, ओके। नोटिंग चार्जेस ये क्योंकि हमने पे किया है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला नहीं है किसने ये नोटिंग चार्जेस भरा है, अपनी जेब से ये 430 रुपीज़ गए हैं, तो हमको कैश गोज आउट ऐसे दिखाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको इतना तो बता दूं कि आपको एक जर्नल की ज़रूरत पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेटली फॉर 2 पेजेस अबाउ इन द बुक्स ऑफ अभिषेक, विच आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो आपको बनवाना है। इसके बाद में द बेटर एक्सप्लेनेशन दैट इज़ द डायग्राम, कि देखो अपनी तो दुकान ड्रॉवर की है, क्योंकि हम ड्रॉवर है। ये मेरे ऊपर कौन है, विनीत जो ड्रॉई है। सिद्धांत किधर है, देखो पहले तो विनीत ने मुझको एक बिल साइन करके दिया, वो है भूतकाल, इट इज़ द पास्ट टेंस, ओके। एंड दैट सेम बिल मैंने सिद्धांत को एंडोर्स किया, वेरी इंपॉर्टेंटली, ओके। सो दिस गिव्स यू द पास्ट टेंस। अभी क्या गड़बड़ हो गया, अभी ये बिल डिसऑनर्ड है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये पास्ट टेंस है, इसकी एंट्रीज आपको नहीं करने, अगर आप करोगे कोई गलत नहीं है, आपका टाइम पास हो जाएगा। आपको प्रेजेंट टेंस का एंट्री करना है। व्हाट इज अ प्रेजेंट टेंस एंट्री, देख डिसऑनर पर वो रिटर्न हो जाएगा, विनीत अकाउंट डेबिट एंड सिद्धांत अकाउंट क्रेडिट, बट बिकॉज नोटिंग चार्जेस आपने आपकी जेब से दिए हैं, वो आपको अलग से क्रेडिट व्हाट गोज आउट लिखना पड़ेगा। सो अगर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं, जो ऑब्वियसली आई हैव टू शो यू बिकॉज दैट इज द रीजन आप ये चैनल देखते हो। विनीत अकाउंट डेबिट इज 23,430, बट सिद्धांत इज ओनली 23,000, और वो जो 430 है ना, वो आपका नोटिंग चार्जेस है, जो कंप्लेन करने के चार्जेस होते हैं, जो आपने आपकी जेब से भरे, तो कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नरेशन में आप अपनी पूरी कोशिश करो ये एक्सप्लेन करने की कि किसने क्या किया और क्या हुआ, लाइक यू सी अबाउ और rather behind me, being Vineet's acceptance, endorsed to Siddhant, comma, dishonored and noting charges paid. So very simply put, point number A only had one entry, वो तो हो गया। Point number B पता नहीं, पढ़ के देख लेते हैं, पता थोड़ी फीलिंग आ जाएगी कितने एंट्रीज है उसके अंदर। काजल कौन है, मैं तो नहीं हूँ, वेल हम नहीं है। रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक, हम अभिषेक है तो काजल ड्रॉई है, अभी रिन्यूअल होगा 4 स्टेप्स। आगे पढ़ो, फॉर 39,000, तो जो बिल है जिसका बंटवारा होगा कैश और पार्ट पेमेंट और न्यू बिल में, वो 39,000 का है। बाय पेइंग 3,000 इन कैश, अभी 3,000 अभी मिलेगा तो 36,000 बाद में मिलेगा। ये एक रफ आइडिया आपको आ जाना चाहिए। एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस अलोंग विथ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कितना है जो न्यू बिल के साथ जुड़ेगा, कहा है 11.5%, थोड़ा अजीब है 11.5, बट नॉट अ प्रॉब्लम, 11.5 अपॉन 100 आपको करना है फॉर 3 मंथ्स। पॉइंट नंबर बी आपको 4 एंट्री देगा, रिन्यूअल के 4 एंट्री। अगेन इट्स ऑलवेज नॉट ऑलवेज, इट्स एक्सेलेंट टू एक्सप्लेन टू यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। काजल मैडम ड्रॉई, हम रिन्यूअल कर रहे, जो ऊपर दिया गया है 4 स्टेप्स, मैंने ऊपर लिखा है पॉइंट बी, सो यू नो कि ये डायग्राम कौन से पॉइंट का है। 39,000 का ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट 3,000 का, तो न्यू बिल 36,000 का, और इसी के साथ और इसी पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, विच इज 8 फॉर्मूला, जो अनगिनत बार आपको बोला गया है, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। व्हेन यू डू दैट सक्सेसफुली, ओके, थोड़ा फंबल हो गया, 1035 आपको मिलेगा, जो आप ऐड कर लो।
टोटल नया बिल का होगा 37,035। नाउ इन दिस आपको 4 एंट्रीज करने हैं। कौन से? स्टेप 1, बिल को कैंसिल करो। बिल तो अपने पास है, कैंसिल का मतलब रिटर्न। काजल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल B1 the amount of the old bill which is 39,000. Again it's a simple entry जो हमने पहले अनगिनत बार, अनलिमिटेड टाइम हमने ये किया है। ओके, स्टेप 2 क्या है जी? इंटरेस्ट चार्ज कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने चार्ज कर लिया। काजल अकाउंट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने पहले ही कर लिया है। दैट इज द रीज़न वो रफ वर्क हम बना लेते ताकि हमारी गाड़ी ना रुक ना पाए, रुकने की ज़रूरत ना हो उसको। ओके, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। फिर वसूली, पार्ट पेमेंट, चलो जी वो भी कर लेते हैं। वो 3,000 का है, हमने कैश ले लिया। अगर हम चेक लेंगे तो हम बैंक अकाउंट लिख लेंगे। कैश अकाउंट टू काजल अकाउंट, दैट इज़ फॉर द पार्ट पेमेंट, इट इज़ फॉर 3,000। ओके, तो ये भी हो गया। क्योंकि द स्पेस ऑन दैट पेज इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, मैं बाकी का B4 मेरे ऊपर लिखने वाला हूँ। वो है न्यू बिल, मेक न्यू बिल, जो इंटरेस्ट के साथ है 37,035। ओके, थोड़ा गाड़ी आगे चला गया। ओके, सो द मेक न्यू बिल इज, हम काजल ने हमको बिल साइन करके दिया, तो बिल रिसीवेबल टू काजल। ओके, कहाँ पर चला गया? हाँ जी, मेरे ऊपर आ रहा है B4 37,035 टू काजल एंड नरेशन बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन टिल पॉइंट नंबर B। ओके, ये जो पिछले कुछ टाइम से क्वेश्चंस चल रहे हैं, इससे आपको इतना तो अंदाज आ ही जाता है। ओके, कि कोई पॉइंट में ये या तो एक एंट्री आती है, कभी 2 एंट्री आती है, कभी 4 एंट्री आती है, और कुछ नहीं इसके अलावा। ओके, तो पॉइंट B तो हो गया, पॉइंट C देख लेते हैं। राधिका मैं नहीं हूँ। रिटायर्ड, रिटायर्ड का मतलब है ड्यू डेट के पहले पैसे देना, तो डिस्काउंट तो बनता है या रीबेट। हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक, तो आइडिया आ गया कि राधिका इज द ड्रॉई फॉर 23,000, ये बिल का अमाउंट, बाय पेइंग 22,250 बाय चेक। तो 23,000 के लिए अगर आपको 22,250 मिले तो बीच में 750 गायब है, वो आप डेफिनेटली डिस्काउंट बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये राधिका है, उन्होंने हमको एक्चुअली चेक दिया, बट मैंने कैश में बताया आपको कैश लिखना नहीं, आपको रिप्लेस करके बैंक लिखना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने बिल दे दिया, दैट इज ऑफ 23,000, तो बीच में इसका डिस्काउंट आता है, आप रीबेट भी बोल सकते हैं उसको। वो होता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दिस इज पॉइंट C, एकलौता एंट्री, 2 नहीं 4 नहीं, पॉइंट C एकलौता एंट्री। देखो कैश के जगह पे बैंक लिख रहा हूँ क्योंकि चेक मिला है इसके लिए, बाकी डिस्काउंट रीबेट आप लिख सकते हो टू बिल रिसीवेबल। अगेन दीज आर नॉट न्यू एंट्रीज, आपको भी पता है कि ये नया एंट्री नहीं है। हाँ, इतना ही है कि ये वाले जो सम्स होते हैं उसमें पूरे चैप्टर का ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। पॉइंट C डन। पॉइंट नंबर D। ओके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादा रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, इसके लिए जितने कम एक्सप्लेनेशन में हो सकता है ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर D पढ़िए। अभिषेक सेंट अ बिल ऑफ सुबोध, हमने सुबोध का बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दिया। बिल था 9,000 का, कब? अभी दिया, पुराना नहीं, पुश्तैनी नहीं, हमने सुबोध का बिल, ये सुबोध ने हमको बिल दिया, ये पुराना है, हमने दे दिया कलेक्शन वालों को। ओके, फिर एंट्री क्या आती है? वेल, जो अभी अभी आपको हमने दिखाया D1, क्योंकि 2 एंट्री आने वाले हैं, इसके बाद मैंने पढ़ा नहीं है बट डोंट वरी आ जाएगा। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, ये 9,000 का बिल था, सुबोध का बिल जो हमने वसूली के लिए, मतलब कलेक्शन के लिए, वसूली साउंड्स a little bit more बम्बईया, ओके, बट कलेक्शन के लिए हमने दिया। अभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सुबोध को ये बिल ऑनर करना है। आगे पढ़िए। बैंक इन्फॉर्म्ड दैट द बिल इज डिसऑनर्ड बाय सुबोध। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ये ऑनर्ड नहीं है, ये डिसऑनर्ड है।
डिसऑनर्ड है तो आपको बिल रिटर्न करना पड़ेगा। नोटिंग चार्जेस नहीं है जी, नोटिंग चार्जेस नहीं है। सुबोध अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक अकाउंट मत लिखना, बट नोटिंग चार्जेस नहीं है। वो मैं थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि अगर नोटिंग चार्जेस होता है तो किसने नोटिंग चार्जेस भरा वो जानना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डू इज़ टू शिफ्ट ऑन दैट साइड ऑफ द स्क्रीन। थोड़ा टाइम लग गया, ओके, बट हो गया ताकि वो जो है वो खाली है और वहाँ पे मैं आपको आंसर बता सकूँ। सुबोध अकाउंट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, देर इज़ नो नोटिंग चार्जेस। होता थोड़ा फर्क आ जाता। बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस नहीं है एट दी एंड, बिकॉज दैट इज द लास्ट पॉइंट एंड द लास्ट जर्नल एंट्री। आपको ग्रैंड टोटल लिखकर, ओके, नॉर्मली कोई भी मूवी बड़े ग्रैंड सीन के साथ में खत्म होता है ना, तो ग्रैंड टोटल लिखकर विच इज़ 1,44,500। ग्रैंड टोटल मैंने बहुत बार बोला है कि आई एग्जैक्टली डोंट नो, बट कुछ प्रोफेसर्स अगर वो ना देखे तो कभी कभार एक मार्क कैंसिल करते हैं, जो जिसके साथ में चांस मुझे भी नहीं लेना है, विच आई होप कि आप समझ सको। ओके, हाँ, सो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको अनेकों बार दिए गए हैं कि अगर आप पुराने हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि हमको या ये चैनल को जो रिक्वायर्ड प्रोत्साहना है, एनकरेजमेंट है, वो हमको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारे नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतज़ार ज़रूर करें। जो भी अगर आप बेल आइकन दबाते हो तो एटलीस्ट यूट्यूब के द्वारा आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए सर जी इतना ही रखते हैं। ओके, जल्दी दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।